Hello students, welcome back. In the last video we have learned how to perform the read and write operation in the binary file when the list was already provided to us. Now in this video we are going to learn how to perform the read, write and search operation in the binary files by taking the values from the user. So here we have opened Python and we know that in order to work with the binary files we need to import the module which is the pickle module. So we have written a statement here, import pickle. After that we need to open the file, so we say f equals to open. Now my binary file is employee, so I write down here employee.dat and I want to open it in the write mode because I want to enter the records in this one. So we have opened our file. The next thing which we are going to do is we'll take an empty list. Let us name the list as rec. And now first we want to ask from the user how many records he wants to enter. So we have taken a variable n equals to int input. We'll say how many records. After the user enters the number of records, we need to access each and every record. So for that accessing, we need to provide a for loop. So we'll use for I in range n. Now we have to enter the values. We will take three records, three columns, that is employee number, employee name and salary. Let us take it as employee name. Enter the name. Then we take as e number equals to int input. Enter the employee number. After this we need to take the value salary from the user. So we'll take the variable as sal equals to int input. Enter the salary. After taking all the three values, we need to append it. Like for the first time, the user will enter the values of employee name, number and salary. So we need to append this data in the list. So we'll take here a variable data which is equal to the elements of the list, that is e name, e number and salary. और इसके बाद हमें अपने इस डेटा को रिकॉर्ड नाम की लिस्ट में अपेंड करवाना है. So append function will take one list at a time. So record.append data. Now we have taken the values from the user. अब हमें इस डेटा को फाइल के अंदर राइट कराना है. तो राइट कराने के लिए हमने पढ़ा था कि we have the dump function. So we'll use pickle.dump and our object handle. So the object is the list which is rec and the file handle is f. After that we are going to close the file. So this way we have created a file employee.dat. हमने एक ये file create करी which is in the write mode. So first of all let us save the file and check where this file exists in our Python library. We are saving this file with the name employee1. This is our Python file. Now let us run this file and check the output. It asks you how many records. So let us enter three records. Enter the name, suppose ABC. Enter the employee number, suppose 1. Enter the salary, suppose 20,000. Then enter the name again, like B, employee number 2, salary 10,000. Then next name, that is K, employee number 3 and salary
40,000. We have entered 3 records here, and since we have not given any print statement, it will just take this data from the user and write it into the file. Now let us see where this data has gone into which file. We'll go to the file tab, click on the open option. Now here, since it is our file that is binary file, so we'll click on all files and check the name of the file. Here, what is the name of the file? emp.dat. So we need to specify here emp. So here you can see this is our binary file emp. Just right click on this file and open this file with the notepad and see the contents in it. Now you can see here कि आपने जो रिकॉर्ड्स डाले थे 3, they were the name, employee number and the salary. ये रिकॉर्ड्स हमने इस फाइल में डाले थे, लेकिन they are not readable because ये आपकी बाइनरी फाइल के फॉर्म में सेव्ड हैं, तो ये हम रीड नहीं कर पाएंगे. अब अगर हमें इसमें से डेटा रीड करा के पाइथन की स्क्रीन पे इसे डिस्प्ले कराना है, सो वी हैव टू यूज द रीड फंक्शन इन दिस केस. So what we will do here, first again we will open the file, f equals to open, specify the name of the file that is emp.dat, and अब हमें फाइल से डेटा को रीड कराना है, इसलिए हम फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, that is rb, because we are working with the binary file. Now रीड कराने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है पिकल मॉड्यूल का, that is load function. We have taken pickle.load और यहाँ पे आता है आपका फाइल हैंडल, एंड ये आपका किस में स्टोर हो गया, इन द वेरिएबल s. नाउ फॉर एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, एक एक एलिमेंट दैट इज एक एक लिस्ट को डिस्प्ले कराने के लिए वी हैव टेकन फॉर i इन s प्रिंट s. नाउ लेट अस चेक इट्स आउटपुट. नाउ सी इट आस्क्स हाउ मेनी रिकॉर्ड्स. अब इस बार हम 2 रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं. एंटर द नेम, सपोज जे, एम्प्लॉय नंबर 12, सैलरी 30,000. देन एंटर द नेम, लेट अस एंटर इट एज एच, एम्प्लॉय नंबर 23, सैलरी 50,000. नाउ यू कैन सी हियर दैट जितने भी इसके अंदर वैल्यू सी इट हैज डिस्प्लेड जे 12 30,000, एच 23 50,000. गॉट इट. सिंस वी आर टेकिंग द वेरिएबल एस हेयर, इसलिए वो हमें 2 बार प्रिंट करा के दिखा रहा है वैल्यूज. यहाँ पे आपको लेना है आई, देन यू विल रन इट वंस अगेन, देन इट विल शो यू द वैल्यूज एज. इट इज आस्किंग यू हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, लेट अस एंटर 2 रिकॉर्ड्स. So this is my first entry and this is my second entry. This is the employee name, employee number and salary. Then the next employee number, name and salary. तो ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया और ये आपका सेकंड रिकॉर्ड हो गया. तो इस तरह से जो भी हमने डेटा फाइल के अंदर लिखा था, दैट इज द नेम ऑफ द फाइल वाज employee.dat, इसके अंदर हमने 2 रिकॉर्ड्स को एंटर किया, तो ये रिकॉर्ड आपको इस तरह से डिस्प्ले करके दिखाएगा. अब मान लीजिए हमें इन जो हमने इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स एंटर किए, हमें इसमें से कोई भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है बेस्ड अपॉन आइदर ऑन द एम्प्लॉय नेम और द नंबर और द सैलरी. सो इन दैट केस वी हैव टू प्रोवाइड अ सर्च ऑपरेशन. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. नाउ फॉर द सर्च ऑपरेशन, सबसे पहले अगेन हमें फाइल को ओपन करना है और ओपन करने के बाद फाइल में से डेटा को रीड कराना है. सो हमने अपनी फाइल को अगेन रीड मोड में ओपन किया और लोड फंक्शन की हेल्प से डेटा को रीड करवाया. रीड कराने के बाद हमें वो एम्प्लॉय नंबर एंटर करना है जिसको कि हम सर्च करना चाहते हैं. हम इसे एम्प्लॉय नेम से भी सर्च कर सकते हैं और इसकी सैलरी से भी सर्च कर सकते हैं. अभी हमने लिया एम्प्लॉय नेम, सो en इज अ वेरिएबल. हमने बोला इंट इनपुट एंटर द एम्प्लॉय नंबर टू सर्च. सो जो भी एम्प्लॉय नंबर यूजर एंटर करेगा वो आपका स्टोर हो जाएगा इन द वेरिएबल en. आफ्टर दैट विल से फॉर i in s if en
इक्वल्स टू आई ऑफ 1। अब यहाँ पे 1 हमने किस तरह से दिया, ई नेम, ई नंबर और सैलरी, इट इज़ अ लिस्ट। इसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं इनकी इंडेक्सिंग किस तरह से है, 0 1 2। यानी कि जो भी आप उससे यूज़र से सर्च कराना चाह रहे हो सबसे पहले आपको उसकी लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग चेक करनी है। अगर आप नेम के अकॉर्डिंग सर्च कराते तो नेम इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पे लिस्ट के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन बनती है 0, आप यहाँ पे देते 0। अगर आप एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे दिया 1, और अगर आप सैलरी के अकॉर्डिंग सर्च कराएंगे तो यहाँ पे आप देंगे 2। सो EN आपका वो वेरिएबल है जो यूजर एंटर करेगा, और I ऑफ 1 का मतलब है आपकी लिस्ट में जो भी एंट्रीज हैं उसके फर्स्ट वैल्यू, यानी कि एम्प्लॉय नंबर। देन अगर वो उसके इक्वल हो जाती है इन दैट मीन्स आपका जो रिकॉर्ड है दैट यू हैव गॉट। सो हियर यू हैव टू गिव अ प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट record found. Which record found? That is record I. So you have to just print that record and पूरी की पूरी लिस्ट आपको प्रिंट करवानी है। और उस केस में हमने एक ले लिया वेरिएबल फाउंड इक्वल्स टू 1 एंड वी विल गिव वन स्टेटमेंट दैट इज ब्रेक, कि अगर इसमें एम्प्लॉय नंबर जो यूजर ने डाला वो हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यू है तो उस केस में आप देंगे रिकॉर्ड फाउंड और उस पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे। एंड हमने एक वेरिएबल ले लिया फाउंड इक्वल्स टू 1 और हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसके बाद ये ब्रेक करके आउट ऑफ द लूप चला जाए। नाउ वी विल सी वन स्टेटमेंट हियर कि अगर हमारी फाउंड की वैल्यू 0 रहती है, इफ फाउंड इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? फाउंड 1 तब होता है जब उसे रिकॉर्ड मिल जाता है, इनकेस उसे रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फाउंड की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 0। सो अगर हमारी फाउंड की वैल्यू 0 रहती है तो हम कहेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके, आफ्टर दिस विल डू f डॉट क्लोज। फाइल को क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ द फाइल हैंडल जिसका हमने नेम दिया हुआ है f। नाउ लेट अस रन दिस प्रोग्राम वंस। सो हियर इट आस्क्स हाउ मेनी रिकॉर्ड्स। सपोज हमने वैल्यू दी यहाँ पे 2, एंटर द नेम सपोज B, एंटर द एम्प्लॉय नंबर 10, एंटर द सैलरी 20,000, then next name that is suppose L, next employee number 11 and salary 30,000। ओके, सो हियर ये जो आपने यहाँ पे दिया था प्रिंट आई, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले हमारा राइट फंक्शन की हेल्प से हमने डेटा को इसमें राइट कराया। ये जो आपको दो आउटपुट दिख रहे हैं B 10 20,000 एंड L 11 30,000, दिस इज बेसिकली जो फाइल से डेटा को रीड करके प्रिंट कराया गया। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट। नाउ इट इज आस्किंग एंटर द एम्प्लॉय नंबर टू सर्च, तो दिस इज द एम्प्लॉय नंबर टू बी सर्च्ड। सो हियर वी हैव द एम्प्लॉय नंबर टू सर्च। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया 10 और 10 ऑलरेडी हमारा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये कहेगा रिकॉर्ड फाउंड। कौन से रिकॉर्ड में है 10? यहाँ पे उसका एम्प्लॉय नेम जो है दैट इज B, नंबर इज 10 एंड दैट इज 20,000। ठीक है, अब हम उस एग्जाम्पल को भी देखते हैं जिसमें हम वो वाला एम्प्लॉय नंबर एंटर करेंगे जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक बार फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हमने सपोज रिकॉर्ड्स लिए 2 और यहाँ हमने नेम एंटर किया O, एम्प्लॉय नंबर इज 4 एंड सैलरी एज 44444 एंड एंटर द नेम एज O, एम्प्लॉय नंबर एज 6 एंड सैलरी एज दिस। सो नाउ जो भी आपने डिटेल्स डाली वो इसकी लिस्ट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करके दिखा दी गई। अब हमने डालना है एम्प्लॉय नंबर टू सर्च। अब अपनी लिस्ट में चेक करिए कौन कौन से एम्प्लॉय नंबर है, 4 एंड 6। मान लो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया 51। अब आपको पता है 51 इज नॉट इन माई लिस्ट, तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है, इट सेज नेम फाउंड इज नॉट डिफाइंड। वेट अ सेकेंड, तो इस केस में हमने फाउंड को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो इसे हम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, दैट इज फाउंड इक्वल्स टू 0। Now let us run it once again. So it is asking again how many records. So let us enter the records. तो इसने क्या किया, आपको डिस्प्ले करके दिखा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल 2 रिकॉर्ड्स हैं
और यहाँ पे हमारे पास इट इज़ आस्किंग फॉर द एम्प्लॉय नंबर टू सर्च। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नंबर सर्च करना था, दैट वाज टू बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और हमने वहाँ पे एक लिस्ट एंटर कर दी. सो विल टेक द रिकॉर्ड्स एज 2, name as H4, salary this, name as suppose U, employee number 7, salary this. Now अब यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट हैं, H4 दिस, U7 दिस. सो 4 और 7 दो एम्प्लॉय नंबर हैं. अब मान लीजिए हमने कोई इसमें ऐसा नंबर डाला जो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता. सपोज हमने डाला 8, सो इट विल से रिकॉर्ड नॉट फाउंड. ओके, सो इस प्रोग्राम में हमने बेसिकली क्या किया, हमने एक बाइनरी फाइल को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ द ओपन फंक्शन, एंड वी हैव डन यूज्ड इट इन द राइट मोड. हमने एक एम्प्टी लिस्ट ली और उसके अंदर यूज़र से रिकॉर्ड्स लिए कि कितने रिकॉर्ड्स आपको एंटर कराने हैं, और वो हमने लिस्ट की फॉर्म में डेटा को एंटर कराया विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन. डम्प फंक्शन की हेल्प से हम फाइल के अंदर डेटा को राइट करा रहे हैं, एंड लोड फंक्शन की हेल्प से हम फाइल के अंदर जो भी हमने डेटा लिखा उसे हम रीड करके डिस्प्ले करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट. इसके बाद हमने फाइल को दोबारा ओपन किया इन ऑर्डर टू सर्च द रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय नंबर. आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप सर्च करना चाहते हैं आपको उसकी पोजीशन देखनी है. अगर आप एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग इसमें सर्च कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन लिस्ट में 1 है. आप एम्प्लॉय नेम के अकॉर्डिंग करेंगे तो 0, और सैलरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो 2 होगी. तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू मैच द कंडीशन यूजिंग द इफ लूप, एंड देन यू हैव टू गिव द प्रिंट स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली. दिस वे दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड. इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि हम 3 ऑपरेशंस, दैट इज इंसर्टिंग, दैट इज राइटिंग इनटू द फाइल, रीडिंग and search operation कैसे perform करते हैं on the binary file. I hope you have understood this question now, and if you have any doubts still, just feel free to comment in the comment section, and I'll meet you in my next video. Thank you.